ICC چیمپئنز ٹرافی افغانستان اور انگلینڈ کے میچ کے دوران شہر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں. کرکٹ شائقین کو 3 درجاتی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. جبکہ آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ دھماکہ خیز بارودی مواد برآمدگی کیس کا یہ معاملہ ہے اور عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم اسرار الحق کو 5 سال قید بامشقت کا حکم سنا دیا ہے. ATC عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کا فیصلہ سنایا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں ابو بکر طارق سے. جی ابو بکر بتائیے گا. عدالت میں دھماکہ خیز بارودی مواد برآمدگی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. عدالت نے جرم ثابت ہونے پر دہشت گرد کو سزا کا حکم سنایا ہے. عدالت نے ملزم اسرار الحق کو سزا کا حکم سنایا ہے، جبکہ عدالت نے ملزم اسرار الحق کو 5 سال قید بامشقت کا حکم دیا ہے. اس دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے یہ فیصلہ سنایا ہے. پروسیکیوٹر میاں طفیل نے کہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے دلائل دیے ہیں اور پروسیکیوشن نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزم سے بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ملزم مختلف دہشت گرد کی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے ملزم کو سزا کا حکم دیا جائے، جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ CTD لاہور میں مقدمہ درج ہے اور عدالت نے ملزم اسرار الحق کو 5 سال قید بامشقت کا حکم دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. سرائے کے مطابق آصف علی زرداری نے اراکین پنجاب اسمبلی کو بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے لیے ہدایت کر دی ہے. ان کا کہنا تھا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. عوامی مسائل کا حل بلدیاتی الیکشن میں ہے، ہم عوامی ہیں، ہمیں عوام کی جنگ لڑنی ہے. مزید جان لیتے ہیں محمد یاسین سے. یاسین بتائیے. زرداری جو 5 روزہ دورہ مکمل کر کے آج ہی لاہور سے اسلام آباد گئے ہیں. ان کی گزشتہ روزہ اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی ہے گورنر ہاؤس میں. اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کی جو تیاری ہے وہ کرے اور ہمیں بھرپور کامیابی حاصل کرنی ہوگی. اور آصف علی زرداری نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تقریر نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. عوامی مسائل کا حل بلدیاتی الیکشن میں ہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عوامی ہیں اور عوام کی جنگ لڑنی ہے. جو بھی پنجاب میں بجلی گیس کہاں کہاں نہیں ہے اور کہاں مل رہی ہے، یہ انہوں نے اس وقت ممبران اسمبلی سے سوال کیا، جس پر ممبران اسمبلی نے بجلی گیس کی جو محروم علاقے ان کی نشاندہی کی. آصف علی زرداری نے کہا کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل کرنا ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. میں ہر فورم پر اس کی نشاندہی کر چکا ہوں. بلاول بھٹو اور میں خود پنجاب میں بیٹھوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی کارکردگی متاثر کن ہے اور ان کی بہترین ان کا کام چل رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سردار سلیم حیدر کا کام ہے کہ جہاں کہیں غلطی ہو اس کی نشاندہی کرے اور اس پہ ایکشن بھی لیں. یہ بھی انہوں نے اس بیوروکریسی کے حوالے سے انہوں نے جو ممبران اسمبلی اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی ہماری بات نہیں سنتی اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری میں دیا گیا لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اور جو متعلقہ ضلع کے جو ڈپٹی کمشنر تو کیا اسسٹنٹ کمشنر بھی اس ایڈیشنل سیکرٹری کی بات نہیں سنتا. ممبران نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو انہیں تبادلوں تک ہر قسم کی جو فوری آرڈر ہے وہ دیے جاتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہوتا. اور اس حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ضلع کو ماضی کی طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے اور باقی جو ضلع ہیں وہ احساس محرومی کا شکار ہیں اور کسانوں کا پنجاب میں کوئی پریشانی حال نہیں. ہر جگہ کسان پس رہا ہے اور ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری کا. انہوں نے کہا کہ کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اور آصف علی اور اس حوالے سے جو ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جیت کر امان میں آئے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں ہو رہے. ہمارے حلقے میں نون لیگ کے افراد جو ہیں ان کے بالکل ترقی بنیادوں پر کام ہو رہے ہیں اور ڈی سی اور اس کے علاوہ AC بھی جو ہے وہ سمیت متعلقہ انتظامیہ پر نون لیگی افراد کے جو کام ہے فوری کر رہے ہیں. ممبران کے تحفظات جو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ آپ تحفظات بالکل جائز ہے، ہم ان کو جلد حل کروائیں گے. آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ ہماری ترجیحات ملک اور عوام میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے ہمیشہ ملک و قوم کی جنگ لڑی ہے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے گورنر پنجاب سے سردار سلیم خان نے آصف علی زرداری کو پنجاب میں سیاسی اور انتظامی صورتحال سے آگاہ بھی کیا ہے. جی محمد یاسین تفصیل اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. لاہور سمیت پنجاب میں جرائم روکنے کے لیے نیا محکمہ قائم کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کی منظوری دے دی ہے.
एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह होंगे, जबकि CCD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। सर्विलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वक़्वा पर पहुंचेगा। CCD 4258 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। जुर्म सरजद होने की सूरत में सर्विलेंस ड्रोन 5 मिनट में जय वक़ुआ पर पहुँच जाएगा। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी तौर पर हरकत में आएगा। CCD शूटर और कब्जा माफिया पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात करेगा। डकैती, राहजानी, ज्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरिमों से मुतल्लिक डाटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह होंगे। 3 DIG डिविजनल हेडक्वार्टर में SSP, SP और हर जिले में DSP तैनात करने का फैसला। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मजमूई तौर पर 4258 अफसरों और एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। पंजाब पुलिस से 2258 अफसर और एहलकार फौरी तौर पर CCD ट्रांसफर। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत असलम बुखारी का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुखालिफिन ज़ुबान दराज़ी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत असलम बुखारी का मज़ीद कहना था कि 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे नहीं शुरू किए जितने मरियम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए हैं। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। नौजवानों के इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और आसान कारोबार के लिए कर्जे चाहिए हैं। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेले और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। नौजवान नस्ल ने जलाओ गिराओ और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक और उम्मीदवार बनकर सामने आ चुकी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने मुलाकात की है और चेयरमैन PPSC ने गवर्नर पंजाब को सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट बराए साल 2024 पेश की है। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया कि साल 2024 के दौरान 7458 उम्मीदवारों को मेरिट पर भर्ती किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में मुस्तकिल वाइस चांसलर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा हुसैन ने बतौर वाइस चांसलर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का चार्ज भी संभाल लिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। इससे पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के लिए जो मुस्तकिल वाइस चांसलर है उनकी तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और अब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा ने जो अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा हुसैन ने बतौर वाइस चांसलर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और प्रोफेसर ने बरतानिया की रोनल यूनिवर्सिटी से PhD और पोस्ट डॉक्टरेट हासिल कर रखी है। डॉक्टर ज़ैबुल निसा ने बैनुल-अक़वामी जरीदों में 150 से ज़्यादा मकालाजात जो हैं वो शाया किए हैं, करवाए हैं और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर अलाइड केमिस्ट्री की डायरेक्टर रह चुकी हैं और उनका 25 साल से ज़्यादा तालीमी तजर्बा है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुल निसा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री बरतानिया, अमेरिकन केमिस्ट्री सोसाइटी की भी मेंबर हैं और उन्हें बेहतरीन मुहक्किक के तौर पर बरतानिया से 3 अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के नए मेंबर के लिए इजलास का इनेकाद। कानून दान एहसन बुन जजेस की तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद, जबकि एहसन बुन नामजदगी के लिए 14 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
जुडिशल कमीशन के साबिक मेंबर अख्तर हुसैन के मुस्ताफी होने के बाद जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार की नुमाइंदगी के लिए नए मेंबर की नामजदगी का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल की 245वीं मीटिंग का इनेकाद हुआ। सदारत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने की। मीटिंग में पाकिस्तान बार कौंसिल के 20 मेंबरान ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, चेयरमैन यासीन आजाद, मुनीर अहमद खान काकड़, हारून रशीद, खुशदिल खान, सैयद अमजद शाह, पीर मसूद चिश्ती, एहसन बून, सैयद कलब हसन, हफीजुर रहमान चौधरी, मिर्जा अजीज अकबर बेग, हसन रजा पाशा, शफकत महमूद चौहान, फारूक हामिद नाइक, शहादत एवान, शहाब सरकी, आबिद शाहिद जुबैरी, ताहिर फराज अब्बासी और नूर आलम खान शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के मेंबर की नामजदगी के लिए अटॉर्नी जनरल ने रिटर्निंग ऑफिसर का किरदार निभाया। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए इलेक्शन में 19 वोटर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से एहसन बून 14 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए, जबकि मद्दे मुकाबिल ताहिर फराज अब्बासी 4 वोट हासिल कर सके। बलोचिस्तान के मेंबर मुनीर काकड़ ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, इश्तियाक खान और सिंध के मेंबर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने के हवाले से जजेस तकसीम। मातहत अदलिया के 768 जजेस ने रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि 979 जजेस ने दिन रात अदालतें लगाकर केसेस पर समाअत से मासद कर ली। पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने के हवाले से जजिस एक पेज पर न आ सके। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने सेशन जजिस से दिन रात अदालतें लगाने पर राय मांगी। जजिस ने तहरीरी तौर पर डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को आगाह कर दिया। 768 जजिस ने रजामंदी का इजहार किया, जबकि 979 जजिस ने इस मामले पर मुआजरत कर ली। पंजाब में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 14 लाख से ज्यादा है। इन केसेस को निपटाने के लिए जजिस की तादाद 1747 है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजिस की तादाद 152 है। 504 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजिस फराइज अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सिविल जजिस की तादाद 110 और सिविल जजिस की तादाद 981 है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने पंजाब की मातहत अदालतों में डबल शिफ्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। लाहौर हाई कोर्ट के डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने पंजाब के तमाम सेशन जजिस को मरासला भी भिजवाया, जिसके बाद पंजाब के तमाम जजिस ने अपनी रिपोर्ट डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को अरसाल कर दी। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिपोर्ट चेयरमैन नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी को भिजवा दी। अब इस हवाले से वकला तंजीमों से तजावीज़ मांगी जाएंगी और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद दिन रात अदालतें लगाने का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के एहतजाज का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी सेहत को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील अजहर सदीक का दरख्वास्त में मौकिफ था कि डॉक्टर्स ने लाहौर के अस्पतालों और सड़कों को मफलूज करना मामूल बना लिया। कानून के तहत डॉक्टर्स किसी भी सूरत इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक डॉक्टर्स के एहतजाज और हड़ताल की वजह से हजारों मरीज दरबदर हो जाते हैं। अदालत हड़ताली डॉक्टर्स के लाइसेंस मुअत्तल और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी सेहत को जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।